roughly your score, and you will be able to correct it if there are any deficiencies in that. So let's start the discussion of our topic of today. The immune and lymphoid system. It monitors against potentially hazardous foreign agents, or especially the microorganisms, or it may be some other type of organisms as well. The lymphoid system, the cells of immune system and lymphoid system, they are overlapping with each other. I would use this term. And the cells of the lymphoid system mainly are lymphocytes and supporting cells. And the supporting cells are actually the cells which are the area of overlap between the immune system and lymphoid system. Actually, immune system is the system which is responsible for providing defense to the body, and lymphoid system is one of the systems which is responsible for performing this function. The cells, they act through various agents, I would say agents, which may be proteins in nature, maybe peptides, or they may be glycoproteins, or just a part of the membrane protein or the cell membrane. So सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर आफिया, जरा माइक को थोड़ा सा करीब कर लें और हो सके तो स्क्रीन फुल कर दें थोड़ी. जी, इज इट बेटर नाउ या और करीब कर लें? ओके, सो I think the voice would be better now. Now, I was. It's okay. Screen maximize कर लेना. Screen को maximize कर दें. जी मैम जी. जी ठीक है. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. Ma'am, thank you. Okay. Okay, beta, you're welcome. Actually, if you interrupt like this at various points, it will make the lecture more interesting, and both of the sides will remain awake, wide awake. Anyway, the cells are actually, I usually give the example of to the undergraduate students as if they are the soldiers which are going to fight, and these are the soldiers, and the whole of the body is just the nation, the individuals themselves, which are forming the part of a country. And these cells which are responsible for producing, for looking after the immunity, these are the lymphocytes and supporting cells. So these are actually the soldiers or army of the body. And the cytokines and the phagocytosis and generation of various types of immune response by producing, producing various enzymes or various agents which are responsible for destroying the injurious agents. That is actually the immunization, and the agents through which you can kill the invading organism, या यूं कहें कि असला है कि in cells के पास. So cytokines or the phagocytosis which they can perform, or the antibodies through the generation of immune response, plus the various methods which are at the cellular level, they are all the emanation of these soldiers, the cells. Lymphoid tissue is a special variety of connective tissue with large number of lymphocytes present in it. So wherever there is aggregation of lymphocytes, whether it's a dispersed type of arrangement, that just the lymphocytes are scattered in a random way,
in the lymphoid tissue. That will be called as the diffuse distribution. Or there are lymphoid aggregation, wherever there is a group of lymphocytes bound together and staying at one side and forming a lymphoid follicle or a lymphoid nodule. That will also be lymphoid tissue. That is one of the way in which the lymphoid tissue can be present. Now, these lymphoid nodules plus the diffuse distribution of the lymphocytes, when it is present in an encapsulated area or in a circumscribed area, that area is called lymphoid organ. And obviously, for an organ, you have to have a supporting tissue as well. And the supporting tissue is the tissue which in histology we say as, we call as stroma. So the stroma will be made up of reticular connective tissue. This fact is actually asked in various ways in MCQs. And one of the way of asking this MCQ is that simply writing down that the reticular connective tissue is present, is forming the stroma of the following structures, or usme se there is one of the lymphoid organs which is given as an example, and that is actually the correct answer. So this small thing, that reticular connective tissue, is mainly present in the lymphoid organs, forming its basic framework. Antigen is any foreign structure or substance against which an immune response is generated or can be generated. The cells of immune system, they react to small molecular regions of the antigen, and these small molecular regions, these are called epitopes or antigenic determinants. So it's not that the whole of the antigen is recognized and it is the whole structure is kept in the memory of the cells of immune system. Just an epitope, a small part of the molecular region of the antigen, can be recognized as a memory, and that specific part of the antigen is called antigenic determinant or epitope. All of you would be knowing this much from your previous knowledge, that the antibodies are the glycoproteins belonging to immunoglobulin family that have the ability to interact with an epitope. Again, you can use the word antigen. That will make it simple, but if the word epitope is used, that can be confusing for the individuals who do not know, who are not aware of this term, which I think would be very few. It is secreted by the plasma cells, and the types of immunoglobulins, are IgG, IgA, IgM, IgD, and IgE. You would be familiar that this IgE variety, it is present on the surface of the basophils and mast cells, and this is usually you see in the individuals who have got an immune reaction or an acute immune reaction to an agent. IgD antibody is present on the surface of B lymphocytes. These three antibodies are less in amount in comparison to IgG, which is the most abundant type of antibody. 75% of the total amount of antibody, it belongs to this category. So again, this can come as an MCQ. If I write on top of it, which is the most abundant type of antibody, and these are the options, and obviously this is not written, so you should remember that the answer would be IgG. Similarly, there can be an MCQ that which of the following antibodies is present in the saliva or secretion, any of the secretions. So the answer would be IgA. So you need to remember that it is present in the IgA is present in the normal human secretion. IgM is just 10%, and it is the first antigen to be formed, and it crosses the placental barrier
So that is the important thing about IgM. And it forms the 10% of the total antibody pool. This IgD and E, we have already discussed that IgD is present on the surface of lymphocytes and E on the surface of these basophils and mast cells. So whichever reactions are linked with mast cells, there will be increase in the level of IgE. The cells of the immune system. Excuse me, ma'am. मैम हाँ। प्रीनेटल लाइफ में या नियोनेट्स के अंदर कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है? नियोनेट्स के अंदर IgM पहले होती है जो कि मदर से आई होती है, लेकिन फिर साथ ही IgG बनना शुरू हो जाती है. So it's IgM first in the first few weeks or months, and then later on IgG starts forming. Cells of immune system, number one is lymphocytes. There are two varieties of lymphocytes mainly, although there is a third variety also, but I haven't written it over here because कुछ जगहों पे सिर्फ T और B lymphocytes का ही जिक्र होता है, and the supporting cells are neutrophils, eosinophils, mast cells, basophils, and antigen presenting cells. अच्छा, अब ये इसलिए मैंने खास तौर पे ये स्लाइड बनाई है क्योंकि I have seen some MCQs जो मैंने इसमें डाले नहीं हैं, लेकिन उसमें कोई भी lymphocytes या mast cell या जो आम तौर पे बच्चों को याद होता है कि इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, उनका नाम नहीं दिया होता और सिर्फ न्यूट्रोफिल्स का दिया होता. अब जैसे इओसिनोफिल या मास्ट सेल का नाम आए तो एकदम से आप कहेंगे कि ओ दिस इज द सेल ऑफ द इम्यून सिस्टम. लेकिन अगर न्यूट्रोफिल का नाम आए तो आप थोड़ा सा सोचते हैं कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन में नहीं है, लेकिन फेगोसाइटोसिस में क्योंकि इन्वॉल्व है और इन्फ्लेमेशन पे है, तो इट इज नेम्ड सपोर्टिंग सेल बिकॉज इट इज फ्लोटिंग इन द ब्लड एंड सो इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की थोड़ी सी डिटेल में हम जाएंगे. आई थिंक द नेक्स्ट स्लाइड शुड बी these are antigen presenting cells. Antigen presenting cells जो हैं वो दो टाइप्स के हैं. एक है कि that belong to mononuclear phagocytic system, and amongst them are the macrophages. The macrophages में ही आप tissue macrophages भी गिन लें. एक तो circulating macrophages होते हैं, दूसरे tissue macrophages जो कि Kupffer cells and Langerhans cells and follicular dendritic cells, which are mainly present in the spleen and in the skin. Non-mononuclear phagocytic system के जो antigen presenting cells हैं, those are B lymphocytes and type 2 and type 3 epithelio-reticular cells. Epithelio-reticular cells आपको याद ही होगा, these are present in thymus. So उसकी 6 टाइप्स होती हैं, उसमें से टाइप 2 एंड टाइप 3 दोज आर द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. नाउ वी गो टू द प्रीवियस स्लाइड. द टाइप्स ऑफ द lymphocytes. B lymphocytes are formed in the bone marrow and they produce IgD. जैसे हमने अभी एंटीबॉडीज में पढ़ा था कि the IgD is present on the surface of the B lymphocytes. These are of two types mainly: the effector cells, which form the plasma cells and then responsible for antibody production, and the second type of cells are memory cells. All of you know that memory cells are responsible for the long-term immunity, and that if the body is attacked by one or microorganism, the second time the body recognizes it at an early stage as foreign. Then the second variety of lymphocytes is T lymphocytes. They also originate in the bone marrow and they become immunocompetent in thymus and they acquire T cell receptors. And after acquiring the T cell receptors, they are able to recognize the epitopes presented by antigen presenting cells, and then they respond only to that antigen. And that
is actually a protein antigen. If there is any other type of antigen, then the T cells will not be involved in recognizing or destroying it. The types of T lymphocytes are effector T cells, which are cytotoxic in nature. They have the innate ability of destroying the tumor cells. Then there are regulatory cells, which are of two varieties, helper and suppressor T cells. Obviously, the name is self-explanatory. The helper T cells will produce immune response, and suppressor T cells are equally important because once the immune reaction starts, it should not go on and on. It has to stop when the pathogen has been destroyed. Otherwise, the antigen-antibody reaction is not a thing which should go on and on. So it's actually the suppressor cells are acting as a check. Then memory cells, again, as the B lymphocytes are of memory cell variety, similarly T lymphocytes are also of memory cell variety. Now here again, I would like to point out that some of the students have this confusion that the T cells originate in the thymus and B cells originate in the, some people say, even spleen or blood. So the correct answer is bone marrow. तो इतना तो पता होता है कि बी lymphocytes bone marrow में बन रहे हैं, लेकिन एक अक्सर ये confusion मैंने students के mind में देखी है कि वो T lymphocytes को समझते हैं कि they are being formed in the just in the thymus. They originate in the bone marrow and then they migrate to the thymus. They can multiply over there and they do multiply over there, but the actual source remains in the bone marrow. That is the reason we कई दफा क्वेश्चन ये भी पूछते हैं या हर किसी के माइंड में मेरा ख्याल है किसी ना किसी स्टेज पे ये क्वेश्चन आया होता है कि जब थाइमस इन्वोल्यूट कर जाता है आफ्टर प्यूबर्टी तो फिर टी लिम्फोसाइट्स कहाँ से आए. तो the origin has not been destroyed. The T lymphocytes are there, and by that time a population of the T lymphocytes is present, and even after involution just a small part of thymus is there for producing new immunocompetent cells in case of need, not as a regular mechanism. That's the third variety of lymphocytes, which was not mentioned in the previous slide, is natural killer cells. They release cytolysin, which is a type of cytokine, and it kills the target cells. And these target cells are usually the old cells which are about to die, or the tumor cells, or any foreign body containing cells. So the natural killer cells have the ability to destroy the cells they want. Antigen presenting cells we have already discussed. They are of two varieties. Now, how do antigen presenting cells and the T cells they function? They function by having a set of or a part of gene loci. This gene is situated on the chromosome number 6. It's just few molecules located on the cell surface as integral membrane protein. यानी जितने भी cells हैं उनकी एक पूरी की पूरी cell membrane बनी हुई है, और cell membrane आपको सबको पता होगा lipoprotein से बनी होती है, और उसमें और glycoproteins भी होती हैं, और उनमें से एक छोटा सा portion जो membrane cell membrane का जो है वो उसको आप कहेंगे कि मेम्ब्रेन का पार्ट है. इट्स इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, एंड दैट इज अ सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स. उसको कहेंगे कि हम दैट इज मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. अब MHC इसका पुराना नाम था HLA. जैसे अगर भी कोई ट्रांसप्लांट करना हो जैसे किडनी का या लिवर का, तो यू चेक फॉर दीज एंटीजन, जिसको पहले HLA एंटीजन कहते थे. अब इसमें ये कि
MHC1 होती है एक, और एक MHC2 होती है। MHC1 is present on the surface of nucleated cells and platelets, और MHC2 is present on the surface of antigen presenting cells. अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी आपने देखा है बहुत सारी टाइप के। अब मेन बात क्या हुई कि MHC1 is present on the surface of majority of the cells of the body. तो ये एक तरह से एक एंटीजन है जो कि एक पार्ट है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स ऑफ one's body which tells you कि हम ये सेल्फ के सेल्स हैं, तो आपको ऑटो इम्यूनिटी ना प्रोड्यूस हो। लेकिन MHC2 कैसे बनती है? वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स से बनती है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जब वॉन्डर कर रहे हैं इन द बॉडी एंड व्हेन दे रीच द टिश्यू इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो दे टेंड्स टू लुक फॉर द फॉरेन एजेंट, और अगर उन्हें कोई फॉरेन एजेंट या कोई ट्यूमर सेल्स भी जैसे नजर आते हैं या कोई अपने ही सेल्स जो फंक्शन सही नहीं कर रहे, दुश्मन के साथ मिल गए हैं, उनको वो रिकग्नाइज करके उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स निकाल के और अपने सेल सरफेस के ऊपर इन देयर सेल मेम्ब्रेन दे प्रेजेंट इट ऑन देयर सरफेस। दैट मीन्स कि उन्होंने जैसे एक लेबल पकड़ा कि ये दुश्मन है, दुश्मन का लेबल जल्दी से उसके लेबल और सिंथेसाइज किया और अपनी सेल मेम्ब्रेन अपने सरफेस के ऊपर पोस्ट कर दिया। उससे क्या हुआ कि वो रिकग्नाइज हो गया कि ओहो इस बैच के साथ का अगर कोई सेल नजर आए तो उसको किल करते हैं। तो MHC2 मेनली प्रोड्यूस होती है थ्रू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, यानी उन्होंने प्रेजेंट कर दी एंटीजन ऑन द सरफेस, सब बॉडी के इम्यून सिस्टम को पता चल गया कि ये दुश्मन है, इसको किल कर। अब बात ये है कि MHC1 जो है वो अपने सेल्स के ऊपर है, इससे आप रिकग्नाइज करते हैं कि ये मेरी बॉडी का सेल है, इसको मैंने किल नहीं करना। MHC2 एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ने दुश्मन पकड़े हैं बॉडी में फिरते हुए और उनको प्रेजेंट कर दिया है ऑन द सेल सरफेस और बता दिया ये वाला बैच खतरनाक लोगों का। तो अब इसमें आंसर क्या छुपा है एक MCQ का, जो मैंने इसमें फिर नहीं डाला, वो ये कि ट्यूमर सेल्स क्यों नहीं डिस्ट्रॉय करते इम्यून सिस्टम के सेल्स। इतने सारे इम्यून सिस्टम के सेल हैं, ट्यूमर जो है वो बढ़ता जा रहा है और बॉडी के नॉर्मल सेल्स को भी किल कर रहा है, तो उसको इसलिए नहीं रिकग्नाइज करते क्योंकि उनके ऊपर MHC1 रिसेप्टर्स होते हैं, उनके ऊपर उनकी मेम्ब्रेन का पार्ट होता है MHC1। तो बिकॉज ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ टाइप 1, tumor cells are not recognized as injurious cells, और उनको किल करने के लिए फिर स्पेशली MHC2 बनता है, और फिर डिफरेंट वेज आर देयर, या जो natural killer cells हैं, they have the ability to recognize them and they then deal with the tumor cells. Now we come to the main topic of today, the lymphoid organ. I mentioned in previous slides that the lymphoid organs are encapsulated, mostly encapsulated, बल्कि encapsulated का word भी मैंने हटा के खुद लिखा था, circumscribed area of lymphocyte aggregation. The lymphocyte aggregation can be in the form of diffusely dispersed lymphocytes or lymphocytes present in the form of nodules, and formed by the supporting reticular connective tissue. तो इसलिए हमें दो बातें पता चली lymphoid organs में क्या है, एक तो well circumscribed area है, दूसरा which may or may not have capsule all around. Encapsulated हम तब कहते हैं जब all around capsule है, अगर किसी एक साइड पे कैप्सूल है तो हम उसको encapsulated नहीं कह सकते, हम उसको कैप्सूल कहेंगे कि एक तरफ है। तो और उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट फीचर है कि लिम्फोसाइट्स हैं बहुत ज्यादा,
और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, दो मेन चीजें ये। So there are four main organs: lymph nodes, tonsils, spleen and thymus. इसमें से thymus को प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं क्योंकि इसके अंदर लिम्फोसाइट सिंथेसाइज भी हो रहे हैं. So one of the sites of synthesis of lymphocytes is bone marrow and the other one is thymus. तो इस हिसाब से आप कुछ बुक्स में या कुछ ऑथर्स कहते हैं कि बोन मैरो को भी लिम्फोइड, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में शामिल करना चाहिए, लेकिन उनको प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में इसलिए शामिल नहीं किया जाता as a rule because it is not just composed of lymphocytes, it's not an aggregation of lymphocytes. इसलिए although it is responsible for production of lymphocytes but not aggregation of lymphocytes. तो इसलिए हम इस लिस्ट में उसको नहीं डालते, but the site of production of the lymphocytes is thymus and the rest of the tissues which are fulfilling the two criteria which I told you of lymphoid organ. Now let's talk about the lymph nodes. Lymph nodes are bean-shaped encapsulated nerves lying in the passage of the lymphatic. अब जहाँ पे भी lymphatic vessels आपको सबको पता है veins के साथ साथ चल रही होती हैं और कुछ जगहों पे अलग से भी main lymphatic channels run हो रहे हैं, but usually they are accompanying the veins. अब उसमें जो lymphatic के passage में दरमियान में जैसे जो है ना filters लगे हुए कि जो lymph flow कर रहा है containing circulating lymphocytes, उन सबको, और फिर जो है टिश्यू फ्लूइड में से लिम्फ आ रहा है उसमें से जो कोई हार्मफुल एजेंट्स आ रहे हैं वो जब लिम्फ नोड में से गुजरे तो वहां पे सारा फिल्टर होके जो भी बाहर से अगर कोई एजेंट्स आए हैं, कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस आए हैं, वो सारे उसमें क्लियर हो जाए, एक तरह से सीव लगी हुई, तो लिम्फ जो है उसमें से क्लियर होके गुजरता है और सीव के अंदर क्या लगा हुआ है, लिम्फोसाइट्स की एग्रीगेशन. They are variable in size and all of you know that their size increases enormously in case of infection because the number of lymphocytes increases over there. They are responsible for filtration of lymph only, they are not responsible for filtration of blood. They are responsible for filtration of lymph only. Whatever blood cleaning is done, it is indirectly through the lymph. Histologically, it is divided into a cortex and medulla. बिल्कुल सिंपल वाले MCQs जो इसमें भी मैंने कुछ डाले थे कि कुछ lymphoid organs के अंदर cortex और medulla है और कुछ में नहीं है, तो ये अभी हम देख लेंगे. By the end of lecture, you would be sure which organs have, which lymphoid organs have capsule, which lymphoid organs have cortex and medulla. अब flow किस तरह कर रहा है? Because they are in the passage of lymphatics. There are afferent lymphatics. A bean-shaped mass है तो उस bean-shaped के साइडों पे all around many afferent lymphatics, 5, 6 or maybe more, they are entering into the lymph node and they then circulate through passages through which the lymph is flowing. Those passages are called sinuses. Those passages are almost clear of lymphocytes और बहुत थोड़े से lymphocytes उसमें जा पाते हैं और बाकी वो lymph का basically flow है. And then while traveling through the sinuses, it passes through the cortex of the lymph node, then through the paracortex, and then through the medulla of the lymph node. Eventually, it leaves the lymph node through the efferent lymphatics. Efferent lymphatics can be 2 or 3. It's not necessary that it should be always be 1. But the number of afferent lymphatics is always more than the efferent lymphatics. ये भी MCQ एक छोटा सा simple सा कई दफा मैंने देखा है बना हुआ. Now the sinuses are actually the passages of the lymph flow, and they are running along with the capsule of the lymph node. यानी जहाँ जहाँ connective tissue है उसके नीचे थोड़ी थोड़ी space छूटी हुई है. तो एक कैप्सूल के बिल्कुल नीचे सब कैप्सुलर साइनस होती है. इट विल बी प्रेजेंट बिटवीन द कैप्सूल एंड द आउटर कॉर्टेक्स. फिर उसके बाद इंटरमीडिएट साइनसेस है. इंटरमीडिएट साइनसेस विल बी मैनी.
वो उनको आप ट्रबैकुलर साइनसेस भी कहते हैं, क्योंकि जो कनेक्टिव टिश्यू है, आउटर कनेक्टिव टिश्यू, उसमें से थोड़े थोड़े ट्रबैकुली कॉर्टेक्स के अंदर आते हैं, तो डिवाइड द कॉर्टेक्स इनटू वेरियस पार्टीशंस। वो डेफिनेटली लॉब्यूल्स उनको नहीं कहते, लेकिन थोड़ी सी इरेगुलर सी पार्टीशन हो जाती है, पार्शियल पार्टीशन, तो उनको ट्रबैकुली कहते हैं। उन ट्रबैकुली के साथ साथ भी पैसेजेस चलते हैं थ्रू विच द लिम्फ फ्लो। So these are called trabecular sinuses or inner cortical sinuses, and then they go into the medullary sinuses. They reach the medulla. और medullary sinuses में क्या है कि वो medulla में, अभी मैं आपको जब slides दिखाऊंगी तो you will be able to appreciate that medulla is sort of anastomosing cords of lymphocytes. तो anastomosing cords के दरमियान जो space होती है, that is the medullary sinuses. Those are the medullary sinuses of the lymph node, and after getting filtered through the medulla, then it goes into the hilus of the lymph node, and from there into the efferent lymphatics. Here you can see the direction of the flow will be from the periphery of the beam, from afferent lymphatics, then subcapsular sinus, then trabecular sinus, and outer cortex and inner cortex, paracortex, and then medullary sinuses, and then the efferent lymphatics. This is the diagram showing the flow of the lymph. You can very easily see that there are three, in this diagram, there are there are three efferent lymphatics, 1, 2, 3 इसमें बनी हुई है। ये सारा कैप्सूल येलो कलर या बेज से कलर का बना हुआ है, और उससे नीचे ग्रीन कलर की सब कैप्सुलर साइनस विच इज कंटिन्यूइंग इनटू ट्रबैकुलर साइनस। बीच में इंटरप्ट मत करें, मुझे कुछ समझ नहीं आती। और then into the inner cortex or paracortical sinuses, and then continuing into the medullary sinus, and the medullary sinus will then eventually flow into the efferent lymphatics, which may be more than one. अब इसमें we will go to the next diagram, which will tell you about the cortex. Cortex is composed of darkly stained peripheral part of the lymph node lying underneath the capsule. Why is it darkly stained? Because of the collection of the lymphocytes. Lymphocytes का आपको idea होगा कि lymphocyte में cytoplasm to nucleus ratio is such that the nucleus is very big, and nucleus is always basophilic staining. So because of the basophilic staining nucleus, there is just a rim of cytoplasm. So practically speaking, wherever the lymphocytes are present, that area becomes very deeply basophilic. So यहाँ पे जो darkly stained word use किया है, इसमें darkly basophilic यानी blue color का. Peripheral part of the lymph node में ज़्यादातर small lymph nodes होते हैं, lymphocytes होते हैं, और small lymphocytes में न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म रेशियो इस तरह होती है कि न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा और साइटोप्लाज्म बहुत कम होगा, जबकि लार्ज लिम्फोसाइट्स में न्यूक्लियस का साइज ऑलमोस्ट उतना ही होता है जितना स्मॉल लिम्फोसाइट का होता है, बट द अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज मोर. सो इन केस ऑफ लिम्फोब्लास्ट और लार्ज लिम्फोसाइट्स उतना ज्यादा बेजोफिलिया नहीं होगा, थोड़ा सा इओसिनोफिल कंटेंट भी नजर आएगा, पिंक कंटेंट भी नजर आएगा, एंड दैट विल अपीयर लाइटली स्टेनिंग. This is the reason behind why the germinal centers where there are lymphoblasts present and large lymphocytes are present, why those regions appear lightly staining in comparison to the primary nodule or the areas where only small lymphocytes are present. So this cortex is packed with lymphocytes, and these lymphocytes are scattered lymphocytes as well as lymphatic nodules. So there will be many lymphatic nodules, and there will be partial division of the cortex by intervening septa, which I've already told you. Again, an important question which may come in the MCQ is, are the plasma cells and macrophages also present in the lymph node, or are there just lymphocytes? So the answer is that the plasma cells and macrophages are also present in the lymph node.
and in the cortex of the lymph. It is divided into outer cortex or inner cortex, or the other name for the inner cortex is paracortex. And there is importance of the paracortex. Here you can see this is outer cortex, and then this area is the paracortex, and this is the medulla. अब थोड़ी सी कंफ्यूजन ये हो जाती है कि आप जब बाकी लिम्फोइड ऑर्गन्स के साथ भी बात करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा ये भूल जाते हैं कि पैराकॉर्टेक्स के अंदर लिम्फेटिक नोड्यूल्स हो सकते हैं, लेकिन रिलेटिवली कम है. ऐसा नहीं है कि लिम्फेटिक नोड्यूल्स आर एब्सेंट इन पैराकॉर्टेक्स. of the lymph node, afferent में भी valves हैं, efferent में भी. दरमियान में जो sinuses हैं उनमें valves नहीं है. So the newly formed T lymphocytes, they leave the lymph node and go to the area of antigenic activity through the medulla of the lymph node. यानी जो पैराकॉर्टेक्स के अंदर वो एंटर हुए थे टी लिम्फोसाइट्स, लेकिन लीव करेंगे अगेन टू गो इनटू द सर्कुलेशन थ्रू इफ देयर इज एन एंटीजेनिक एक्टिविटी in some specific part of the body. क्योंकि ये आप इम्यून सिस्टम आपने पैथोलॉजी में पढ़ा होगा कि डिफरेंट जगहों पे चले जाते हैं इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट्स, एंड वन ऑफ द साइट इज लिम्फ नोड्स. अब अगर उनको लिम्फ नोड्स में से फर्दर ट्रेवल करना है कहीं एंटीजेनिक एक्टिविटी जहां हो रही है वहां जाके फाइट करने की, तो वो लिम्फ नोड में से निकल के, यानी वहां उन्होंने थोड़ा सा फिल्टर किया लिम्फ को, और उसके बाद वो लिम्फ नोड्स में से निकल के साइट ऑफ एंटीजेनिक एक्टिविटी पे पहुंच जाएंगे. तो वहां से निकलने का उनका रास्ता जो है वो थ्रू ब्लड ही वो जाएंगे और थ्रू लिम्फेटिक्स जाएंगे और मेडल्ला में से जाएंगे. दिस इज द पिक्चर ऑफ मेडल्ला एनलार्ज्ड व्यू, जिसमें सिर्फ मेडलरी साइनसेस और मेडलरी कॉर्ड्स नजर आ रहे हैं. This is the picture which tells you that the main framework of the lymph node is formed by the reticular fibers. तो ये special stains हैं जिससे कि silver stains, जिससे कि पता चल रहा है कि reticular fibers कितने ज्यादा हैं. Reticular connective tissue is forming the main framework. यहाँ पे एक important question ये आ जाता है कि capsule of the lymph node, although it contains reticular fibers, but it is not a variety of reticular connective tissue altogether. इसको categorize, जो भी capsule बनता है different organs का, उसको categorize करते हैं as dense irregular connective tissue, but it may contain reticular fibers as well. And these reticular fibers which are visible, they are actually forming the reticulum or the framework in the subcapsular and trabecular sinus. इसलिए ये इतने ज्यादा नजर आ रहे हैं. कैप्सूल इटसेल्फ इज डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लें, अदरवाइज वी गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज स्प्लीन. मैम यही लास्ट स्लाइड में जो आपने रेटिकुलर फाइबर्स और कैप्सूल का बताया, ये एक दफा रिपीट कर दीजिएगा. अच्छा बेटे, इसमें ये है कि कैप्सूल ऑफ लिम्फोइड ऑर्गन histologically speaking is composed of dense irregular connective tissue. Dense irregular connective tissue variety होती है जो capsules बनाती है. अब आपको lymph node में पता है कि capsule के नीचे subcapsular sinus है. I will go back to the diagram in which it was very clearly visible. इस स्लाइड में नीचे वाली में अगर आप देखें, this is the capsule. इसकी स्टेनिंग भी डिफरेंट है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशन आप देखें, दिस इज डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. इसके नीचे दिस रीजन इज सबकैप्सुलर साइनस, एंड सबकैप्सुलर साइनस कंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स. यानी एक मेश वर्क बना हुआ है सबकैप्सुलर साइनस का, जिसके अंदर से लिम्फ फ्लो कर रहा है इसकी स्पेसेस में से, और लिम्फोसाइट्स भी स्कैटर्ड हैं. और इसी तरह से यहाँ पे ये कैप्सूल का ट्रबैकुली जा रहा है और साइनस की कंटिन्यूएशन भी जा रही है ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रबैकुली.
So subcapsular sinus is continuing into trabecular sinus. Trabecular sinus and the subcapsular sinus is for the flow of lymph. और capsule जो है, which is composed of dense irregular connective tissue, वो partitioning और covering है, तो उसकी variety different है. Subcapsular sinus के अंदर जो connective tissue है, that is formed of reticular fibers. तो इसलिए जो हमने special slide देखी, for in which special stain for reticular fibers was done, तो इसमें यूं लग रहा है कि ये सारा का सारा, ये जितने रेटिकुलर फाइबर्स हैं, ये कैप्सूल है. ये कैप्सूल नहीं है, ये ट्रबैकुलर साइनस और कैप्सुलर सब कैप्सुलर साइनस है का एरिया है, ये वाला भी और ये वाला भी. और इससे बाहर बाहर ये कुछ पोर्शन कैप्सूल का है जिसमें भी रेटिकुलर फाइबर्स है. तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में भी कुछ रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं जिन्होंने स्टेन ले लिया, लेकिन रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में रेटिकुलर फाइबर्स ज्यादा हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो कि ज्यादा सब कैप्सुलर साइनस के अंदर. इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. Thank you. Now we will go on to the next topic, which is the spleen. It's the largest lymphoid organ. तो ये एक important fact है. अब इसमें कई दफा एक confusing MCQ होते हैं, जैसे मैंने इसमें कोई डाले हैं कि ऊपर सिनेरियो सारा मेडिसिन से रिलेटेड दे दिया या पैथोलॉजी से रिलेटेड दे दिया और आपका माइंड पैथोलॉजी की तरफ जा रहा है, और एंड में एक बेसिक सा क्वेश्चन हिस्टोलॉजी का पूछ लिया. तो इसी तरह से एक सिनेरियो देके कि कहीं बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गई है किसी रीजन में और रीजनल लिम्फ नोड्स बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई है और बहुत बड़े हो गए हैं रीजनल लिम्फ नोड, और उसके बाद पूछा हुआ है कि लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा होगा. तो उसमें वो इन्फेक्टेड लिम्फ नोड भी एक दे दी एग्जाम्पल, और साथ एग्जाम्पल दे दी स्प्लीन की भी. तो अब लिम्फ नोड भी ऑर्गन है और स्प्लीन भी ऑर्गन है, तो आपने उस वक्त याद रखने हैं स्प्लीन का साइज कि वो कितनी बड़ी है. लिम्फ नोड कितना भी बड़ा हो जाए तो वो जो है ना वो स्प्लीन जितने साइज का नहीं हो जाता, तो इट रिमेन्स द लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन. तो वो यही वाली बात है कि चूहा कितना भी बड़ा हो जाए शेर तो नहीं हो सकता. तो द फंक्शंस ऑफ स्प्लीन, इसमें भी एक दो MCQs ऐसे होते हैं सिर्फ फंक्शंस के अंदर जो कई दफा कंफ्यूज कर देते हैं. वो ये कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनोलॉजिकल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड थ्रू मैक्रोफेजेस एंड डेंड्रिटिक सेल्स ऑफ द स्प्लीन. तो इसका मेन फंक्शन जो है वो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है, although it is filtering lymph as well, लेकिन मेन फंक्शन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है. और फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ, फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ नहीं है इसका फंक्शन, although it is मैं गलत सेंटेंस बोल गई हूँ. Although it is a lymphoid organ, but its main function is not the filtration of lymph. Its main function is filtration of blood. So, and in this performing this function, it destroys the old and worn out reticulocytes. ये आप सबको ही पता है. और उसके अलावा लिम्फोइड सिस्टम होने की वजह से वो प्रोड्यूस भी कर रहा है एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स, यानी एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स हो रही है इसमें, और एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स जो यहाँ पे आ रहे हैं थ्रू द ब्लड, उनकी भी प्रोलिफरेशन होती है. It also has a capsule. It's a totally encapsulated organ, and it has got various trabeculae, which again consists of dense irregular connective tissue. और यहाँ पे spleen becomes different from the rest of the lymphoid organs in having smooth muscles in its capsule. तो ये भी एक और important MCQ बन जाता है कि जब आपको दिया हुआ हो कि कौन से और लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर स्मूथ मसल फाइबर्स भी हैं इन द कैप्सूल, तो आंसर इज स्प्लीन. कई दफा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है वो इस तरह से कि जब पैलेटाइन टॉन्सिल की एग्जांपल दी होती है तो
theoretically speaking पैलेटाइन टॉन्सिल का जो टॉन्सिलर बेड बनता है, टॉन्सिलर बेड के अंदर मसल फाइबर्स हो सकते हैं, बल्कि but those fibers are palatine. अगर मसल लिखा हुआ है खाली तो फिर आप ये सोच लें कि मसल में पैलेटाइन टॉन्सिल वाली बात भी आ जाती है, लेकिन कई दफा जल्दी में बनाए हुए एमसीक्यूज में थोड़ी सी मिस्टेक्स भी हुई होती हैं और सिर्फ मसल भी लिखा होता है। तो एनीवे यहाँ पे मेन बात यही आपने याद रखनी है कि क्या, क्योंकि स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, आपको सबको ही पता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करना है जिसने भी, तो स्मूथ मसल कैप्सूल के अंदर होंगे। Then mainly spleen is composed of white and red pulp. These terms are based on the appearance of the unstained sections of fresh specimen. ये इसलिए इम्पोर्टेंट बात बन जाती है क्योंकि बच्चे इस तरह से याद रखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा जो आर्टरीज है ना, जो आर्टरीज होंगी तो उनमें ब्लड है तो इसलिए वो रेड पल्प होगी, तो ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट द फ्रेश अपीयरेंस, इट्स नॉट जस्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्लड वेसल्स। तो और जो कुछ एरियाज ग्रे लगते हैं, ग्रे कलर्ड एरियाज, ऑल्दो दे आर मेनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स और स्प्लेनिक नोड्यूल्स, लेकिन उन स्प्लेनिक नोड्यूल्स के अंदर आर्टरी भी होती है विच इज एन एफरेंट आर्टेरियोल। और रेड पल्प के अंदर साइनसेस हैं और मेडलरी साइनसेस भी हैं विच आर अगेन कंपोज्ड ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो चाहे रेड पल्प है या वाइट पल्प है, दोनों के अंदर ब्लड वेसल्स भी हैं, लिम्फोसाइट्स भी हैं। इट्स जस्ट द अपीयरेंस ऑन फ्रेश स्पेसिमेन। Then there are arteries in the tubercle which give rise to arterioles, और फिर ये arterioles further divide होते जाते हैं और central arteries बन जाती हैं। अब these arterioles are called central arteries। अब इनको central arteries, दो जगहों पे arteries को मिसनॉर्मल किया गया है arteries, एक यूट्रस के अंदर और एक यहाँ पे स्प्लीन के अंदर। यूट्रस में एंडोमेट्रियम की को जो आर्टरीज सप्लाई कर रही होती हैं उनको भी आर्टरीज कहते हैं, एंडोमेट्रियल आर्टरीज, जबकि वो आर्टीरियोल्स होते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे भी स्प्लेनिक नोड्यूल के अंदर जो आर्टरी होती है उसको सेंट्रल आर्टरी कहते हैं। ये तो बहुत ज्यादा बताया जाता है कि दैट सेंट्रल आर्टरी कैन बी एक्सेंट्रिकली प्लेस्ड, वो भी हम अभी जिक्र करेंगे क्यों एक्सेंट्रिकली प्लेस्ड होती है मोस्टली, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो आर्टीरियोल है। आर्टीरियोल और आर्टरी का डिफरेंस आपको पता होगा। आर्टरी में in comparison to the caliber to the lumen, the amount of smooth muscle is less in comparison to that in the arteriole, यानी arteriole की wall में smooth muscle ज्यादा होता है। तो उससे क्या हुआ कि वो arterial blood flow ज्यादा कंट्रोल होगा in the arteriole। तो ये भी एक मिसनॉमर है, it is basically an arteriole। इस पे भी MCQ करने होते हैं। Then red pulp है क्या? It's most of the spleen, it consists of red pulp, और जो white pulp के एरियाज थोड़े होते हैं जो कि ग्रॉस एग्जामिनेशन अनस्टेन्ड स्पेसिमेन में ग्रेइश नजर आएंगे, वो बहुत थोड़े से एरियाज होते हैं, ज्यादा रेड लग रही होती है स्प्लीन जब उसको कट करते हैं। और वो किससे बनी है? स्प्लेनिक कॉर्ड्स, या जिनको कॉर्ड्स ऑफ विलरॉस भी कहते हैं, और फिर स्प्लेनिक sinuses which are actually sinusoids, and they are lined by long fusiform longitudinally running endothelial cells। अब endothelial cells का जैसे मैंने आपको बताया था कि lymph node के अंदर high endothelial venules में endothelial cells की shape change हुई because their function was different, और shape change हुई कि वो longitudinal या fusiform shape से cuboidal या columnar हो गए venules के एंडोथेलियल सेल्स। यहाँ पे क्या चेंज हो रही है कि आमतौर पे जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं वो अगर ये ब्लड वेसल्स जा रही है तो उसमें यूं
स्पाइरली रनिंग एंडोथेलियल सेल्स होते हैं या ट्रांसवर्सली रनिंग कहते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रांसवर्स नहीं होते, स्पाइरल होते हैं थोड़े। इसी तरह स्मूथ मसल्स भी थोड़े से स्पाइरल होते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लॉन्गिट्यूडनली रन कर, लॉन्ग एक्सिस के अलॉन्ग कर रहे हैं। तो आई एम सॉरी, मैं आपका 1 मिनट ले लिया ज्यादा। व्हाइट पल्प जो है वो दैट इज कंपोज्ड ऑफ स्प्लेनिक कॉर्पस्कल्स। और स्प्लेनिक कॉर्पस्कल्स कैसे बने हैं? इट्स बेसिकली द पेरी आर्टीरियल शीट ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब होता इस तरह से है कि यूं एक पूरी ब्लड वेसल अगर चल रही है, वो 2 में डिवाइड हुई, 4 में डिवाइड हुई, डिवीजन होती जा रही है ब्लड वेसल की, तो उस पूरी ब्लड वेसल जितनी चल रही हैं उनके अराउंड पेरी आर्टीरियल शीट चल रही है, यानी लिम्फोसाइट्स उसको हर तरफ से एनसर्कल किए जा रहे हैं। और स्प्लीन में जैसे ही ब्लड वेसल एंटर हुई है, यानी लिम्फोसाइट्स ने उसको अराउंड एक शीट बनानी शुरू बना ली है। वो इस तरह अरेंज हो गए हैं कि आर्टरीज के साथ 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 चलते जाए। अब वही पेरी आर्टीरियल शीट कहीं पतले सी लेयर है लिम्फोसाइट्स की, यानी स्कैटर्ड लिम्फोसाइट्स है, और कहीं एक पूरा ग्रुप आके इतना बड़ा सा लिम्फोसाइट का ग्रुप बन गया। अब वो जो ग्रुप की फॉर्म में सर्कुलर सा मैस बना, तो वो एक तरह का लिम्फेटिक नोड्यूल हो गया। अब वो लिम्फेटिक नोड्यूल के अंदर से कहीं से ब्लड वेसल गुजर रही, वो उस ब्लड वेसल का नाम तो सेंट्रल आर्टरी है, बट दैट सेंट्रल आर्टरी इज हिस्टोलॉजिकली स्पीकिंग एन आर्टीरियोल, और वो जो एक गोला बना है उसके वो हो सकता है साइड से गुजर रही। जो गोला लिम्फेटिक नोड्यूल का बना है, जिसको स्प्लीन में नाम दे रहे हैं हम स्प्लेनिक नोड्यूल, उस स्प्लेनिक नोड्यूल या स्प्लेनिक corpuscle that may contain a central artery which is passing through the, not exactly the center, but from the periphery of the splenic corpuscle. तो इसलिए इट्स नॉट नेसेसरी, या जहां आपने सेक्शन काटा है किसी जगह पे वो सेंटर से यूं गुजरना है उसने, लेकिन ये सेक्शन आपने काटा है तो उस जगह पे यूं जब सेक्शन काटा तो उसमें आर्टरी साइड पे थी, थोड़ी सी गुजरेगी वो उस शीट के अंदर से, लिम्फोसाइट उसको सराउंड जरूर कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरे कॉर्पस्कल के या पूरे नोड्यूल के वो सेंटर। तो ये दो बातें। और पेरी आर्टीरियल शीट थ्रू आउट द ब्लड वेसल, जिस तरह वो डिवाइड करती जा रही हैं उसमें वो साथ साथ लिम्फोसाइट से लाइंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोज एरिया which are around the blood vessels चाहे कोई भी होंगी स्क्रीन के अंदर, उनके अराउंड आपको थोड़ी सी लिम्फोसाइट्स जरूर नजर आए। Those will be part of periarterial lymphoid sheath. और उसके अलावा क्या है उसके अंदर? Central arteriole, although it's blood vessel, it's an artery, but it's part of white pulp. And this is a diagrammatic representation या handmade drawing of spleen. इसमें एक और important point जो आपके के point of view से है कि spleen का जो capsule है, but the सेंट्रल आर्टरी नहीं है, लेकिन ये भी व्हाइट पल्प का एरिया है। जहां लिम्फोसाइट्स होंगे जैसे ये व्हाइट पल्प का एरिया है, लेकिन बाकी सारे जहां स्कैटर्ड एरिथ्रोसाइट्स which are actually in the medullary sinuses, those are present, that will be the red one. So the sinusoids and medullary cords, which were previously called as cords of Billroth, they are red pulp.
and central artery. Splenic corpuscle is the splenic white one. मेरा ख्याल है अगर ब्रेक हमने ली तो फिर जरा गड़बड़ हो जाएगी, बाद में ले लीजिए. Thank you. Here in this diagram as well you can see कि ये सारे जो है ये splenic ये white bulb है और ये सारी red bulb है, and everything is scattered. बस बाहर थोड़ा सा connective tissue नजर आ रहा है. आपके जब के जमाने में पार्ट 1 के अंदर स्लाइड्स भी होती थी, रिकग्नाइज करनी तो उस जमाने में थोड़ी सी मुश्किल होती थी इस तरह के चीजों पे. अब तो जस्ट एमसीक्यू, तो आपको इतना ज्यादा नहीं एम्फसाइज करने की जरूरत ऑन द स्लाइड्स. दिस इज अ गुड डायग्राम एंड here you can very easily tell that these are areas of white bulb, these are areas of red bulb. और रेड पल्प के अंदर आपको फ्री एरिथ्रोसाइट्स भी सर्कुलेट करते नजर आएंगे बिकॉज दे आर मेनली फ्लोइंग थ्रू दिस पार्ट. अगेन स्प्लीन में ये सेंट्रल आर्टरी इसमें बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन आप देखें कि पेरी आर्टीरियल शीथ यूं भी एक्सटेंड कर रही है ऑन वन साइड और द अदर. और इसके अंदर कई दफा जर्मिनल सेंटर भी आपको स्प्लैनिक कॉर्पस्कल में नजर आ जाता है, बट मोस्टली स्प्लैनिक कॉर्पस्कल डज नॉट कंटेन अ जर्मिनल सेंटर. इट मे बी प्रेजेंट बट इट्स मोस्टली नॉट. अब ये थोड़ा सा ट्रिकी एरिया जो अगेन एफसीपीएस 1 के लेवल पे पूछते नहीं है, क्लोज सर्कुलेशन और ओपन सर्कुलेशन का मैं आपको हरिडली बता देती हूँ. जो स्प्लैनिक आर्टरी की डिवीजन भी डिवाइड इनटू, जैसे बाकी जगहों पे भी है, ये जब डिवीजन हो के कंप्लीटली सेंट्रल आर्टीरियोल बन गया तो उसके बाद this central arteriole divides into a bunch of arterioles और उनको कहते हैं peninsular artery. Peninsular इस तरह जैसे bristles of the brush होते हैं, उस तरह से एकदम से बहुत सारी branches निकलती हैं और फिर वो बहुत सारी branches आपस में fuse हो जाती हैं. It's just like जैसे आमतौर पे बहुत सारी जगहों पे capillaries का एक नेटवर्क बनता है और capillaries का नेटवर्क फिर ज्वाइन करके वेन बना देता है. तो यहाँ पे भी बननी तो इवेंचुअली वेन ही है, लेकिन आर्टरी जो कि आर्टीरियोल की स्टेज तक भी पहुंची है, इट डिवाइड्स इनटू मेनी ब्रांचेस एंड देन दोज ब्रांचेस रीजॉइन. अब इसमें ओपन सर्कुलेशन थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि जो यानी ये अगर आर्टीरियल एंड है, मेरा ये हाथ आर्टीरियल एंड है और ये वीनस एंड है, तो इनके दरमियान कनेक्शन है. यहाँ से जो आर्टरीज में से ब्लड आया वो फ्रीली यहाँ फ्लोट करेगा और फिर वापस वो वीनस साइड पे चला गया. तो ये एक ओपन सर्कुलेशन. और अगर इनके अंदर कनेक्शन है तो दिस इज अ क्लोज्ड सर्कुलेशन थ्योरी. अब कंसेंसस पूरी तरह से नहीं हो सका इसके ऊपर के कौन सी टाइप की सर्कुलेशन है, और इसी बात पे कंसेंसस है कि मे बी बोथ टाइप ऑफ सर्कुलेशन एग्जिस्ट इन द स्प्लीन. और इसमें मेन बात वही जो इसमें भी बताया हुआ है कि जब साइनस बनती है, स्प्लैनिक साइनस के लेवल पे आके द एंडोथेलियल सेल्स आर लॉन्गिट्यूडनली रनिंग and they are very long in fusiform and there are gaps in between these endothelial cells. अब अगर बड़े बड़े गैप्स हैं जैसे यहाँ पे भी शो किए हैं गैप्स, तो इनमें से आरबीसीज बाहर निकल सकते हैं. तो इट्स मोर और लेस लाइक रिगार्डिंग द फ्लो ऑफ आरबीसीज, ओपन सर्कुलेशन हो या क्लोज्ड हो, they can freely come out of these blood vessels. तो इसलिए practically speaking they are at liberty to go anywhere. ये भी वही एग्जाम्पल है कि जब एफरेंट आर्टरी रन कर रही है तो इसमें से ब्लड वेसल्स एकदम से ब्रांचेस, जब पहले तो कुछ थोड़ी सी ब्रांचेस निकलेंगी और फिर एकदम से बहुत सारी इकट्ठी ब्रांचेस निकल जाती हैं जो कि साइनसेस के अंदर जो साइनोसॉइड्स हैं एक्चुअली उनके अंदर ड्रेन कर देती हैं ब्लड, और फिर ये साइनोसॉइड्स के दूसरे एंड पे वेन्स
बन जाएंगी, जो कि फिर वेन्स में ट्यूबैकुलर वेन और स्फेनिक वेन बन के ड्रेन हो जाएगा। Now the third lymphoid organ is, we are running behind. थोड़ा सा मुझे एक सेकंड दे दें, I take a sip. I hope all of you are comfortable और नींद नहीं आ रही किसी को? आ रही है नो तो मैं मैम, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं आ रही वरना मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। Yes, I'm sure. अच्छा जी, अब हम पैलेटाइन टॉन्सिल्स की बात करते हैं। अब असूलन जो है, ये वर्ड पैलेटाइन टॉन्सिल नहीं होना चाहिए था, टॉन्सिल्स होना चाहिए था, क्योंकि लिम्फॉइड ऑर्गन्स में टॉन्सिल्स आते हैं और टॉन्सिल्स जो हैं वो डिफरेंट साइट्स पे हैं। उनमें से सबसे बड़ा टॉन्सिल जो है वो पैलेटाइन टॉन्सिल्स हैं, दे आर बायलैटरली प्लेस्ड। लेकिन हम सबको पता है कि एडिनॉइड्स जो कि लार्ज फ्रिंजियल टॉन्सिल होता है, वो भी सेम टाइप ऑफ टिश्यू है। फिर यूस्ट्रेशियन ट्यूब की ओपनिंग होती है जो नेसोफेरिंक्स के अंदर, उसको भी थोड़ा सा लिम्फॉइड टिश्यू लाइन करता है, विच इज कॉल्ड ट्यूबल टॉन्सिल। तो ये भी टॉन्सिल ही की वैरायटी है, एंड हिस्टोलॉजिकली स्पीकिंग ऑल दीज स्ट्रक्चर्स ऑलमोस्ट आर ऑफ द सेम हिस्टोलॉजिकल टाइप। हम उसकी डिफरेंसेस में नहीं जाएंगे क्योंकि वो कभी भी आपके लेवल पे नहीं पूछा जाएगा। एक और साइट है टॉन्सिल्स की, किसी को याद है कौन सी और साइट है? लिंगुअस। शाबाश, हाँ, लिंगुअल टॉन्सिल्स। लिंगुअल टॉन्सिल्स जो है वो posterior 1/3 ऑफ टंग के अंदर होते हैं और उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो आपको जरूरत नहीं। तो मेनली ये है कि एग्रीगेशन ऑफ lymphocytes and in which lymphoid follicles are arranged in a specific manner, और this is one of the tissue, lymphoid tissue, जो कि totally encapsulated नहीं है। इसकी एक साइड के ऊपर एपिथेलियम है, the side which is facing the lumen of the oral cavity, this oropharynx. So medial surface of the oral pharynx, there are many crypts on that side. Crypts का मतलब elevation and depression. Crypts का मतलब होता है depression. तो अगर depression है तो elevation भी होगी। तो डीप क्रिप्स भी होते हैं कुछ, और कुछ सुपरफिशियल से क्रिप्स होते हैं थोड़े थोड़े। तो इसलिए यूं एपिथेलियम जो है वो डिप डाउन करती है और साथ साथ ही लिम्फोइड टिश्यू भी उसके नीचे नीचे चलता जाता है। तो ये एक साइड के ऊपर जो कि ओरल साइड होगी, उसके ऊपर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होगी, और उसके नीचे जो है देयर विल बी many lymphoid follicles which depending upon the stage of immune system and basically the hygiene of the oropharynx, उनके अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स ज़्यादा हैं या सेकेंडरी ज़्यादा हैं, वो जाहिर है डिपेंड करेगा कि कितने लिम्फोसाइट्स वहाँ बन रहे हैं, जब इम्यून सेंटर की ज़रूरत है या नहीं। तो दिस इज पैलेटाइन टॉन्सिल एक तरह से थोड़ी सी एक्सेप्शन बन जाती है कि एक तो ये कि इट्स नॉट एंटायरली एनकैप्सुलेटेड ऑर्गन, दूसरी बात ये है कि इसके अंदर क्रिप्स हैं और एपिथेलियम लाइंड है, तो इस लिहाज से ये बिल्कुल डिफरेंट ऑर्गन बन जाता है। और इसके अंदर भी हम इसको कॉर्टेक्स और मेडुला में स्पेसिफिकली डिवाइड नहीं करते, लेकिन अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो है ना सब एपिथेलियल जोन है। सब एपिथेलियल जोन के अंदर बहुत सारे लिम्फोइड फॉलिकल्स हैं, और बाकी जो इसका इस पोर्शन को टॉन्सिलर बेड कहते हैं, जिस साइड पे कैप्सूल भी होगा और उससे नीचे फ्रेंजियल या पैलेटाइन मसल्स होंगे, और इस एरिया में ये जो लोअर पोर्शन है या टॉन्सिलर बेड वाला रीजन है, इसमें थोड़े से ग्लैंड्स भी हो सकते हैं और बेसिकली लूज कनेक्टिव टिश्यू होगा। So if you see the histological picture, these are the crypts, और थोड़ा सा enlarged way हो तो you can very easily appreciate that this is the epithelium, और epithelium के नीचे ये lymphoid follicle. This is an enlarged view of I think the same area. हाँ, ये area enlarged हुआ है, तो इसमें ये देखें, this is the stratified squamous,
नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। इसके सरफेस के सेल्स भी देखें तो उसमें सारों में न्यूक्लियस नजर आ रहा है, so that is a non-keratinized variety. And here there is aggregation of lymphocytes in the form of follicles, and इसके अलावा scattered lymphocytes भी बहुत से हैं, और बाकी जो components of reticular connective tissue। ये लास्ट ये पैनोरामिक व्यू है इनको ये कि इसमें ज्यादा एरिया नजर आ रहा है, और ये एरिया जो है ये कैप्सूल का एरिया है या टॉन्सिलर बेड का एरिया। टॉन्सिलर बेड की साइड पे कैप्सूल है एंड द पार्ट्स ऑफ द फेरेंजियल और पैलेटाइन वॉल। अब सबसे लंबी वाली डिस्कशन जिस ऑर्गन की होती है दैट इज द थाइमस। थाइमस आपको सबको पता है कि नेक में होता है इन एम्ब्रियो, और फिर अपर पार्ट ऑफ द थोरैक्स में चला जाता है, सुपीरियर मीडियास्टिनम में, और डेवलप जो है नेक रीजन से होगा, फेरेंजियल अपरेटस से, और जब अपर मीडियास्टिनम में जाके और फिर इवोल्यूट कर जाता है। अब इसको जब हम हिस्टोलॉजिकली स्टडी करते हैं तो इट इज कंपोज्ड ऑफ कॉर्टेक्स एंड मेडुला, बट यहाँ पे मेन बात क्या है कि लिम्फेटिक नोड्यूल्स नहीं है। जैसे पैलेटाइन टॉन्सिल में कैप्सूल नहीं था, कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवीजन नहीं, यहाँ पे कैप्सूल है, कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवीजन भी है, लेकिन जो ये नहीं है, लिम्फेटिक नोड्यूल्स नहीं, इवनली डिस्पर्स्ड कनेक्ट ये लिम्फोसाइट्स हैं, सारे के सारे डिफ्यूज वेराइटी ऑफ लिम्फोसाइट्स, एंड इट इज वेरी डेंसली पैक्ड। अब इसमें कॉर्टेक्स और मेडुला में डिफरेंशिएशन इस तरह है कि कॉर्टेक्स के अंदर डेंसली पैक्ड टी लिम्फोसाइट्स हैं और मेडुला के अंदर लूजली पैक्ड है। ये कहा जाता है कि अबाउट 90% ऑफ द लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट इन cortex and 5%, 90 to 95% in the cortex and 5 to 10% in the medulla of the thymus. तो इसलिए कॉर्टेक्स वो हुई। अब पहले तो अगर ग्रॉस पे देखें तो थाइमस के 2 लोब्स होते हैं और वो उनके अराउंड कैप्सूल है, उसमें से ट्रूबैकुली भी अंदर जा रहे हैं। ट्रूबैकुली बिल्कुल डीप डेप्थ तक नहीं जाएंगे। अब अगर आपने हिस्टोलॉजिकली एक किसी लोब को कट करके देखा है तो उसमें भी आपको यही नजर आएगा कि बाहर की तरफ कैप्सूल है और अंदर थोड़े से सेप्टा या ट्रूबैकुली जा रहे हैं, which do not divide the thymus into many lobes, many lobules. लोब्स तक डिवाइड करेगा वो कैप्सूल, लेकिन लोब्यूल्स में डिवाइड नहीं करेगा। एंड एक अगर आपको पूरा लोब जो नजर आएगा, इट विल बी कंपोज्ड ऑफ ग्रुप्स ऑफ लोब्यूल्स। और ये हिस्टोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन जो है डिफरेंट बुक्स में थोड़ी थोड़ी फर्क दी गई, उसकी वजह से कंफ्यूजिंग हो सकती है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु स्टडी मोर देन वन बुक ऑफ हिस्टोलॉजी। मैं आपको यही कहूंगी कि जो एग्जामिनर्स होते हैं उनको भी पता होता है कि ये कंफ्यूजिंग टर्म है, एरिया है, तो उसमें से एमसीक्यू फिर नहीं देते। लेकिन कुछ बुक्स में यूं लिखा हुआ है कि थाइमस इज डिवाइडेड इनटू लोब एंड द लोब्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इल डिफाइंड लोब्यूल्स। और कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ है कि थाइमस का वो ग्रॉस बताते हुए कि वो लोब्स हैं और लोब्स आर देन डिवाइडेड इनटू लोब्यूल्स एंड मैनी लोब्यूल्स कंटेन वन कॉर्टेक्स, मल्टीपल कॉर्टेक्सेस एंड वन मेडुला। तो एक्चुअली जो वो डिस्क्रिप्शन एक लोब की दी हुई है, वो डिस्क्रिप्शन इट फिट्स बेटर इफ यू डिस्क्राइब इट एज अ ग्रुप ऑफ लोब्यूल्स, के ग्रुप ऑफ लोब्यूल मेडुला कॉमन। तो सिर्फ टर्म की बात है कि आप उस एरिया को लोब का नाम दे रहे हैं या ग्रुप ऑफ लोब्यूल्स का नाम दे रहे हैं। So whatever, the main thing is that cortex has got trabeculae, but the medulla is common
to many cortices. और कॉर्टेक्स के अंदर डेंसली पैक्ड हैं T lymphocytes, मेडला के अंदर लूजली पैक्ड हैं, इसलिए वो लाइटली स्टेन होगा, कॉर्टेक्स डार्कली स्टेन होगी। एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स कॉर्टेक्स में भी हैं, मेडला में भी हैं, मैक्रोफेजेस कॉर्टेक्स में भी हैं, मेडला में भी हैं, लेकिन ज्यादा मैक्रोफेजेस कॉर्टेक्स में होते हैं। और हेसिल्स कॉर्पसल, जो आपको सबको नाम याद होता है, हेसिल्स कॉर्पसल और thymic corpuscle, that is present in the medulla, and that is mainly formed by the epithelio-reticular cells. लेकिन उसमें थोड़े से यूं कहें entangled से मैक्रोफेजेस भी हो सकते हैं, रॉड सेल्स भी हो सकते हैं। Now epithelio-reticular cells का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि आप अगर थाइमस की डेवलपमेंट जब हो रही होती है तो उसमें से इस तरह होता है कि रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू ने ले डाउन होना होता है। तो रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू ले डाउन करने के लिए कुछ स्पेसिफाइड सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली एपिथेलियल ओरिजिन के, और एपिथेलियल ओरिजिन के होने के और रेटिकुलर कनेक्ट या कनेक्टिव टिश्यू मीजोडर्म से बन रहा है, उनके वेरियस प्रोसेसेस होते हैं इस तरह से। अब ये एक एपिथेलियो रेटिकुलर सेल है, इसका यूं प्रोसेस बना, एक और एपिथेलियो रेटिकुलर सेल है, उसके प्रोसेसेस, ये आपस में एक दूसरे को प्रोसेसेस जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। एक एपिथेलियो रेटिकुलर सेल जाहिर है यहाँ से एक और प्रोसेसेस आ गए, तो एक पूरा नेटवर्क ऑफ एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स बन जाता है। उसके दरमियान में, प्रोसेसेस के दरमियान ये जो एरियाज हैं, इनके अंदर लिम्फोसाइट्स फिर जो हैं वो सारे फिल कर देते हैं एरिया को, जैसे जैसे थाइमस डेवलप होता है। अब जो ये एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स के प्रोसेसेस हैं वो एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करते हैं तो आइदर दे आर कॉन्टैक्टिंग विद ईच अदर थ्रू डेस्मोसोम और थ्रू टाइट जंक्शन। अब जहां जहां बिल्कुल टाइट या ऑक्लूडिंग जंक्शन है वहां पे एक तरह से ये एक पूरा नेटवर्क बना देंगे, एक बैरियर होगा, पूरा एक जोन होगा जिसमें जो बीच में जितने लिम्फोसाइट्स आ रहे हैं वो उनको कोई और चीज अटैक नहीं कर सकती या और कोई चीज अप्रोच नहीं कर सकती। So this network of epithelio-reticular cells is forming the entire stroma of thymus, and this reticulum or network provides an area for the lymphocytes, the T lymphocytes, to develop in a very comfortable or in an environment in which they don't get disturbed by other cells, or they can be taught and nursed in a proper way. अब इनको इतना ज्यादा प्रोटेक्टेड या एक स्पेशल जो एनवायरनमेंट क्यों दी गई है? बिकॉज दे हैव टू बी मेड इम्यूनोकॉम्पिटेंट। इम्यूनोकॉम्पिटेंट बनाने के प्रोसेस को एजुकेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो यूं समझ लें कि जैसे जिन बच्चों को हमने डॉक्टर बनाना होता है, हम उनको मेडिकल कॉलेज में दाखिल कर लेते हैं और एक स्पेसिफिक टाइप की ट्रेनिंग देते हैं। अब वो ट्रेनिंग है भी बड़ी रिगरस, तो हम उनको कहते हैं बेटा तुम आर्ट्स के स्टूडेंट्स के साथ जाके जरा ना ही मिलो, वो तो जरा रिलैक्स्ड रहने वाले हैं। तो उनको हमने थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट एनवायरनमेंट में रखना है सॉर्ट ऑफ। तो और वो डिफरेंट एनवायरनमेंट जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स का फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये तो कहानी मैंने इसलिए सुनाई है कि आपको थोड़ा सा शायद ये याद रह जाए कि ये क्या है फ्रेमवर्क। इनके 6 टाइप ऑफ एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स हैं। इसको बहुत डिटेल्स की यहाँ लिखी तो हुई हैं, लेकिन आपको जरूरत नहीं है, आप इतना याद रख लेंगे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 ये कॉर्टेक्स में है, और फिर 3 को ओवरलैप कर लें,
या 3 और यूं कर ले 1 and 2 कॉर्टेक्स में, 3 and 4 कॉर्टिकोमेडलरी जंक्शन पे, 5 and 6 मेडल्ला में। और इनमें से कुछ के डेस्मोसोम्स हैं, कुछ के ऑक्लूडिंग जंक्शन। अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऑक्लूडिंग जंक्शन जाहिर है जरा ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि उनको उनमें से क्रॉस कुछ नहीं कर सकता, लेकिन डेस्मोसोम्स से भी ये है कि कम्युनिकेशन तो एक एपिथेलियो रेटिकुलर सेल का दूसरे एपिथेलियो रेटिकुलर सेल के साथ है, ये नहीं है कि बीच में कोई और स्ट्रक्चर है। अब इसमें ऐसे होता है कि आउटर कॉर्टेक्स के अंदर जो है this part, outer cortex forms a barrier which is a barrier from the blood. Outer cortex में blood thymic barrier बन जाता है, हम उसकी भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके। उसकी वजह से ब्लड से हर चीज थाइमस के अंदर जो सेल्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती। अब इनको एजुकेट जो करना है, एजुकेशन के प्रोसेस में इनके ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स डेवलप रिसेप्टर्स जो डेवलप करते हैं तो उनको कहते हैं टी सेल रिसेप्टर्स। टी सेल रिसेप्टर्स की ही वेरियस टाइप्स हैं। टी सेल रिसेप्टर की आपने अगर पढ़ा होगा CD4, तो उसको कहते हैं, CD स्टैंड्स फॉर सेल डिफरेंशिएशन। अब सेल डिफरेंशिएशन ग्रुप्स बन जाते हैं डिफरेंट, यानी यूं समझे कि डिफरेंट सेक्शंस में जैसे एक क्लास को डिवाइड करते हैं ना, उस तरह से कि कुछ को आपने एजुकेट कर दिया और उनके ऊपर, उनके सरफेस के ऊपर आ गए CD4 रिसेप्टर्स, कुछ पे आ गए CD8, इसी तरह से टी सेल रिसेप्टर्स बहुत सारे उनके सरफेस पे डेवलप हो गए और वो आउटर कॉर्टेक्स से मेडल्ला की तरफ मूव कर रहे हैं। साथ साथ टी सेल्स की जो है एजुकेशन हो रही है, साथ प्रोलिफरेट होके बोन मैरो से आते जा रहे हैं और एजुकेट होके बाहर निकलते जा रहे हैं। अब जो T1 एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स थे वो आउटर कॉर्टेक्स में थे और वहां पे ब्लड थाइमिक बैरियर बन रहा है। ब्लड थाइमिक बैरियर बन रहा है इसलिए वहां ऑक्लूडिंग जंक्शन। टाइप 2 मिड कॉर्टेक्स के अंदर है, उनके दरमियान डेस्मोसोम्स हैं और वो मेनली यही साइटोरेटिकुलम जो मैंने बताई थी वो बना रहे हैं और उनके दरमियान जो ज्यादा नंबर ऑफ टी सेल्स होते हैं जिनकी अभी एजुकेशन स्टार्ट ही हुई है, तो इसलिए उनको थाइमिक नर्व सेल्स कहते हैं। फिर टाइप 3 एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स जो हैं वो कॉर्टिकोमेडलरी जंक्शन पे आ गए। अगेन दे आर इन्वॉल्व्ड इन टी सेल एजुकेशन। और टाइप 4 जो हैं वो मोर टूवर्ड्स मेडल्ला है, यानी बाहर से शुरू हो 1 2 3 4 और फिर उसके बाद 5 and 6। 4 भी साइटोरेटिकुलम ज्यादा बना रहे हैं और 5 भी साइटोरेटिकुलम बनाने में ज्यादा उनका रोल है। और टाइप 6 जो है ये MCQ, शायद मैंने इसमें भी रखा था एक MCQ कि हेसल्स कॉर्पसल के अंदर कहाँ से बन रहे हैं। तो टाइप 6 एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स, ये एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स भी आखिर डीजेनरेट होते हैं। इन्होंने भी जब बने हैं तो सारी चलते ही नहीं जाना, तो जो डीजेनरेट होते जाते हैं एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स, दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप और अ सर्कल। तो बहुत सारे वो सर्कुलर सी फॉर्म में बेसोफिलिक मटेरियल एक्यूमुलेट हो जाता है which is called Hessel's corpuscle। ये सारा टाइप 6 एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स से बना होता है। अब इसमें जो टी सेल एजुकेशन होनी है वो इस तरह से है कि आउटर कॉर्टेक्स से मेडल्ला की तरफ जैसे जैसे टी सेल्स आ रहे हैं उनके ऊपर टी सेल रिसेप्टर्स बने, फिर उनके ग्रुप्स बन गए। पहले उनको एजुकेट किया, उनको CD4 रिसेप्टर्स भी बन गए, CD8 रिसेप्टर्स भी बन गए, 2-3 और किस्म के भी रिसेप्टर्स बन गए और उसको कहते हैं डबल इम्यूनो कॉम्पिटेंट। और फिर उसके बाद उनको फर्दर, यानी एक पूरा पूल हुआ जिसके ऊपर CD4 रिसेप्टर भी है, CD8 भी है, TCR रिसेप्टर सारी किस्मों के हैं, तो उसको कहते हैं डबल इम्यूनो कॉम्पिटेंट। उसके बाद
CD4 वाले थे उनका एक अलहदा सब ग्रुप हो गया, CD8 वाले का अलहदा सब ग्रुप हो गया। टिल द टाइम दे रीच द मेडल्ला उनको फिर कहते हैं सिंगल इम्यूनोकॉम्पिटेंट, यानी और ज्यादा स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो गया। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे आप लोग, अगर आपने सर्जन बनना है तो पहले आप जनरल सर्जरी करते हैं, उसमें आपको सारी चीजें सिखा दी जाती हैं। फिर उसके बाद अगर कोई कहता है मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है तो उसको एक कैटेगरी में डाल देते हैं, दूसरा कहता है नहीं मैंने तो कार्डियक सर्जन बनना है, उसको दूसरी कैटेगरी में भेज देते हैं। तो इसलिए फिर इवेंचुअली जो है जो जो बच जाते हैं टी सेल्स या जो वो इम्यूनोकॉम्पिटेंट सर्कुलेशन में जाते हैं, they are immunocompetent T cells and they are either CD4 receptor containing or CD8 receptor containing। इसी तरह से पैथोलॉजी में आपने और वेराइटीज भी पढ़ी होंगी कि वो सब स्पेशल वेराइटी के इम्यूनोकॉम्पिटेंस उनमें आ जाएगी एंड दे विल एंटर इनटू सर्कुलेशन। और फिर वहां से उन्होंने लिम्फ नोड्स के अंदर जाना है। लिम्फ नोड में कहाँ जाना है? पैराकॉर्टेक्स के अंदर थ्रू हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स, वहां से वेन्स के थ्रू उन्होंने फिर जनरल सर्कुलेशन में चले जाना है और जहां भी उनकी जरूरत है, जहां इम्यून रिएक्शन चाहिए, एंटीजेंस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो वहां जाएंगे। सो ये मैं ब्रीफली जो बता सकती थी मैकेनिज्म थाइमस का, वो मैंने आपको बता दिया है। इसमें अब यू कैन सी ये कॉर्टेक्स है और ये मेडला है, और मेडला के अंदर ये पिंक एरियाज जो हैं, दीज आर एग्रीगेशन ऑफ epithelial reticular cells which are degenerating epithelial reticular cells and they get organized in the form of a pinkish material। अब इसमें ये देखें कि cortex जो है ये this portion can be called a lobule itself, जिसके अंदर group of lobules हैं, या इस पूरे सेक्शन को आप लोब कहें और उसके अंदर ये वाले लॉब्यूल, ये लॉब्यूल, ये लॉब्यूल, ये लॉब्यूल, ये लॉब्यूल। इन दैट केस आप कहेंगे कि लॉब्यूल्स का कॉर्टेक्स सेपरेट है और मेडल्ला कॉमन है। Or the other way of saying the same thing is that the trabeculae do not extend into the medulla. Trabeculae are present only in the cortex. And here again, आप और इसमें कहीं आपको lymphatic nodules नहीं नजर आ रहे, सिर्फ lymphocytes हैं, they are all small lymphocytes over here, very few large lymphocytes। और इसमें स्टेनिंग रिएक्शन डिफरेंट होने की रीजन ये है, ये नहीं कि यहाँ लार्ज लिम्फोसाइट्स है, रीजन ये है कि यहाँ 90% ऑफ 90 to 95% ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं, तो इसलिए दे आर क्लोजली पैक्ड, सो इट्स डेंसली स्टेनिंग। एंड हियर इन द मेडल्ला देयर आर ओनली 5 to 10% ऑफ लिम्फोसाइट्स, सो they are at a distance from each other, and the in between running epithelial reticular cells which are forming the reticulum or the framework, or in other words reticular connective tissue, it is visible in between the areas which are occupied by the lymphocytes, so that area takes a pinkish stain, तो इसलिए वो lightly staining लगता है in comparison to the cortex। blood thymus barrier जो है, the antigens which are circulating in the blood, they do not come in contact with thymic lymphocytes due to the presence of blood thymus barrier। तो बेसिकली ये है कि थाइमस जो अपने इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स बना रहा है, उनको ज्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, हर वक्त कोई आके छेड़े ना, उनको छेड़ना किसने है? एंटीजेंस ने छेड़ना, तो इसलिए उनको एंटीजेंस से प्रोटेक्टेड रखना है। अभी उनकी एजुकेशन ये हो रही है कि वो सेल और फॉरेन में पहचान कर सके। So this barrier is formed by capillaries and a very thick basement membrane and a layer of epithelio-reticular cells। ये भी थाइमस की पिक्चर्स अगेन बड़ा क्लियरली पता चल रहा है कि कॉर्टेक्स के अंदर कोई लिम्फोइड फॉलिकल्स नहीं है और मेडल्ला में कोई ट्यूबैकुली नहीं है। These are हेसिस कॉर्पसल्स, कई दफा हेसिस कॉर्पसल एक से ज्यादा भी करीब नजर आ जाते हैं, और कुछ थाइमसिस में
बहुत थोड़े corpuscle नजर आते हैं, and sometimes they are not very densely pink. में बिल्कुल लाइट सा पिंक, बट डिफरेंट फ्रॉम। शुरू हो गए हैं बच्चे, कुछ डिस्टरबेंस सुनाई नहीं दी है मैम, मुझे? ये किसी एक का माइक ऑन है। अच्छा ठीक है। और वो माइक ऑन करके जाहिर है घर ही बैठा हुआ है, तो कमरे के अंदर और लोग भी फिर रहे होंगे। ऑनलाइन का ये बड़ा मसला होता है, चाहे आपकी नाम नजर आ रहे हैं लेकिन फीलिंग यही होती है कि डॉक्टर मोहम्मद अली प्लीज म्यूट। तो फीलिंग यही होती है कि जैसे आप दीवार से बातें कर रहे हैं, लेकिन मैडम भी बैठी हुई है कराची CPSC से, तो एटलीस्ट मुझे थोड़ी सी फीलिंग होती है कि कोई तो सुन रहा है, कभी कभी नजर आती है। अच्छा जी, तो अब मुझे आप लोग इसमें बताएंगे जर्मिनल फॉलिकल्स या सेकेंडरी फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स ऑफ लिम्फ नोड, मेडुला ऑफ लिम्फ नोड, कॉर्टेक्स ऑफ थाइमस, मेडुला ऑफ थाइमस, स्प्लीन। अब मुझे बताएं जर्मिनल फॉलिकल यानी सेकेंडरी फॉलिकल, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? मेडुला ऑफ लिम्फ नोड Recording in progress. structure in which lymphatics are received in subcapsular site. Lymph Lymph node, इसका भी बिल्कुल आसान सा जवाब है। पेयर्स पैचेस कहाँ होते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? Small intestine. Small intestine. Small intestine. स्मॉल जो भी नहीं बेटे, स्टमक भी नहीं है, लार्ज इंटेस्टाइन पे, लार्ज इंटेस्टाइन भी नहीं है। एक मुझे आवाज आई थी आइलियम, आइलियम जिसने जवाब दिया है उसने सही बताया है। एंड पेयर्स पैचेस होते क्या हैं? पेयर्स पैचेस आर एग्रीगेशन ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल। इसलिए ये भी कई दफा क्वेश्चन MCQ बना होता है। पेयर्स पैचेस आर एग्रीगेशन ऑफ lymphoid nodules present in ileum, in the mucosa of the ileum. Basically they are present in the lamina propria of the ileum, लेकिन lamina propria से वो सब म्यूकोजा के अंदर भी जा सकते हैं। कई दफा वो इतने बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं, इतनी ज्यादा नंबर ऑफ lymphoid follicles एग्रीगेट कर जाते हैं, अराउंड 100 और मे बी मोर, कि वो अनएडेड आई को भी विजिबल हो सकते हैं। 1 मिलीमीटर या फ्यू मिलीमीटर तक उनका साइज पहुंच सकता है। तो फिर इसलिए आप आइलियम के इनर सरफेस को पोस्टमार्टम पे देखें तो कई दफा वो नोड्यूल्स की फॉर्म में नजर भी आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अगेन लिम्फ नोड है। थाइमस के अंदर लिम्फेटिक्स उस तरह से आ ही नहीं रहे। पेयर्स पैचेस क्योंकि एक ऑर्गन नहीं है और इसके अंदर एफरेंट और इफरेंट लिम्फेटिक्स नहीं है। टॉन्सिल्स में भी आपने देख लिया एफरेंट और इफरेंट लिम्फेटिक्स नहीं है। स्प्लीन में भी कोई इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क नहीं है। लिम्फेटिक नोड्यूल्स आर एब्सेंट इन, इसका क्या आंसर है? लिम्फेटिक नोड्यूल्स आर Thymus. थाइमस, थाइमस, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है पहले, वरना आपको शायद जब आपने पहली दफा इसको देखा था तो एडिनॉइड से भी शायद कंफ्यूजन हुई हो, लेकिन नाउ यू नो कि टॉन्सिल्स के स्ट्रक्चर में पैलेटाइन टॉन्सिल और एडिनॉइड का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है। सिर्फ फर्क थोड़ा सा ये आता है कि एडिनॉइड के नेजल साइड पे कई दफा एपिथेलियम सिंपल कलमनर हो सकती है,
लेकिन हम फिर एपिथेलियम से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछते, या क्वेश्चन पूछते हैं तो एडिनॉइड्स की चॉइस नहीं डालते, ताकि आपको अगर नहीं भी पता तो कंफ्यूजन ना हो। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि पेयर्स पैचेस इज एग्रीगेशन ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल। और दूसरी बात इसमें क्या टेस्ट हो गई कि आपको पता हो कि थाइमस के अंदर लिम्फेटिक नोड्यूल नहीं है। लिम्फोइड स्ट्रक्चर विद पार्शियल कवरिंग ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। अब कौन सा है, इसका जवाब पता चल रहा है? Palatine tonsil. पैलेटाइन टॉन्सिल। Palatine tonsil. पेयर्स पैचेस क्यों नहीं है? पेयर्स पैचेस भी तो उनके ऊपर भी तो एपिथेलियम लाइन कर रही है। मैंने आपको बताया कि वो लैमिना प्रोप्रिया ऑफ आइलियम में, तो फिर उसमें आप क्या आंसर होगा? हमने क्वेश्चन में ये चीज डाली है, विद पार्शियल कवरिंग ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। तो आइलियम का अगर आप सोचें तो उसमें कलमनर एपिथेलियम। तो इसी तरह से अगर इसमें जो हमने एडिनॉइड्स का डाला होता तो भी उसमें एपिथेलियम डिफरेंट हो जाता। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैंने डाला है ना, ये इसलिए डाला है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बहुत नापसंद है कि उसमें पूछनी हिस्टोलॉजी की बात है, लेकिन आप सारा बच्चों को मिसलीड कर रहे हैं कि टिंगलिंग सेंसेशन इन लिप्स एंड माउथ फॉलोड बाय टमी पेन एंड क्रैम्पी डायरिया। अब बेसिकली उसको ये बता रहे हैं कि कोई इम्यून रिएक्शन हुआ है या कोई इन्फेक्शन हुई है, वो उस तरफ सारा ध्यान चला जाना है। डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग एंड ब्रीदिंग से थोड़ा सा ये पता चला कि कुछ एलर्जिक रिएक्शन। अब एलर्जिक रिएक्शन के लिए द सेल्स causing reaction would most likely be developing in। अब ये सेल जो रिएक्शन में मेनली इन्वॉल्व होते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शन, वो मास्ट सेल्स होते हैं। अब मास्ट सेल्स डेवलप कहाँ हो रहे हैं? मेडुला ऑफ लिम्फ नोड, जर्मिनल सेंटर ऑफ लिम्फ नोड्स, Germinal center of skin associated lymphoid tissue and periarteriolar lymphoid sheath of spleen। हाँ जी, जर्मिनल सेंटर ऑफ लिम्फ नोड मास्ट सेल्स डेवलप हो रहे हैं। अच्छा जी, where does immunoglobulin switching from IgM to IgG primarily occur? germinal center of lymph node. IgM Peripheral blood. Peripheral blood. नहीं, IgM to IgG। थाइमस में थाइमस, हाँ जी। ये मैं 100% श्योर नहीं हूँ, मैं ये चेक करके आपको आंसर बताऊंगी, लेकिन मेरे ख्याल में ये थाइमस। ठीक है, I should have checked these MCQs। Anyway, lymphoid, ये क्वेश्चन नंबर 7 था ना, कि मैं आपको कंफर्म करके मैसेज कर दूंगी। lymphoid organ containing reticular fibers, liver, lungs, Spleen. वो इसलिए क्योंकि बाकी lymphoid organs हैं ही नहीं। ठीक है ना? मैम वो MCQ 6 है जो आपने चेक करना है, 7 है ही नहीं। हाँ, 6 चेक करना है, ठीक है। तो इसमें ये चेक करना है कि आपको ये पता है कि बोन मैरो इज नॉट अ लिम्फॉइड ऑर्गन, उसको प्राइमरी लिम्फॉइड जो ऑर्गन उस सेंस में कहा जाता है कि लिम्फोसाइट्स वहाँ सिंथेसाइज होते हैं, और उसमें भी लिम्फॉइड टिश्यू होता है, उसमें भी रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, लेकिन आपको ये पता हो कि दैट इज नॉट कैटेगराइज्ड एज अ लिम्फॉइड ऑर्गन। इसी तरह से आइलियम में लिम्फॉइड रेटिकुलर फाइबर्स पेयर्स पैच के अंदर कई दफा थोड़े से होते हैं, लेकिन दैट इज बेसिकली द एग्रीगेशन ऑफ लिम्फेटिक नोड्यूल्स। तो इसलिए आइलियम में भी
lymphocytes हैं, लेकिन भी हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिक्स बहुत ज्यादा lymphoid follicles, लेकिन they are not called Peyer's patches. Aggregates of lymphoid nodules consist of cells involved in fighting the invading pathogens. The example of such encapsulated structure is lymphatic nodules which are encapsulated, tonsil, appendix, Peyer's patches, thymus, और फिर एंड में म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. Tonsils. आर यू श्योर? टॉन्सिल भी है जवाब. Thymus. मैम थाइमस में तो लिम्फोइड नोड्यूल नहीं होता. हाँ, इसका करेक्ट आंसर इनफैक्ट ना, ये मैंने इसलिए रखा था कि इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं जिसमें दो आंसर्स बन रहे हैं. वाली बात, इस तरह के एमसीक्यूज क्योंकि मैंने पार्ट 1 में देखे हैं इसलिए मैंने डाला है, और हम इस तरह के एमसीक्यूज रिमूव कर रहे हैं या उनको रीफ्रेज कर रहे हैं. यूज होना चाहिए था विद अ कैप्सूल. एनकैप्सुलेटेड जब आप कहते हैं तो इसमें हर तरफ से कैप्सूल होना चाहिए. तो हर तरफ से कैप्सूल टॉन्सिल में नहीं होता, लेकिन हर तरफ से कैप्सूल थाइमस में है तो वहां लिम्फेटिक नोड्यूल्स नहीं है. तो इसलिए या तो यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू होना चाहिए अगर एनकैप्सुलेटेड लिखना था, तो लिम्फोइड टिश्यू अगर होता तो फिर थाइमस करेक्ट आंसर हो जाता. अगर यहाँ पे विद अ कैप्सूल तो फिर टॉन्सिल करेक्ट आंसर. ठीक है, तो इस तरह के आंसर्स का फिर एंड में जवाब, अब मुझे सीपीएससी वाले नाराज ना हो जाए कि ऐसी बातें क्यों की हैं, वो एंड में फिर यही होता है कि आमतौर पे फिर दोनों को करेक्ट कंसिडर कर लेते हैं. विद इन अ लिम्फ नोड देयर इज अ कॉर्टेक्स एंड मेडुला. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड इन कॉर्टेक्स आर फाउंड इन कॉर्टेक्स? लिम्फ नोड की कॉर्टेक्स में क्या है? B cells. बी सेल. T cells. टी सेल्स बेटे पैराकॉर्टेक्स में, पैराकॉर्टेक्स में. तो बी सेल. ठीक है, ये तो फिर मैक्रोफेजेस भी होते हैं कॉर्टेक्स में. होते हैं लेकिन फॉर्म्ड लिखा हुआ, तो बी सेल्स वहां मल्टीप्लाई भी करते हैं. ठीक है, प्रेजेंट नहीं, फॉर्म्ड. ये तो रिपीट हो गया ना, ये तभी 7 मिस हुआ है, ये 2 दफा रिपीट हो गया. 7 की जगह ये 2 दफा लिखा गया. पेयर स्पेसिस और एग्रीगेट. नो मैम आप 12 पढ़ना, आप बैक जा रही हैं. सॉरी. Regarding pharyngeal lymphoid tissue, the following are correct except B. Infection results in increase in lymphoid tissue. नहीं बेटे, ये भी करेक्ट है. लिम्फोइड टिश्यू बड़ा हो जाएगा. It has no efferent lymphatics. तो इसकी भी efferent lymphatics होती है, जो उस तरह से लिम्फ नोड की तरह क्लियर कट एफरेंट नहीं होती, लेकिन efferent इसमें होती है. लिम्फोइड टिश्यू का लिम्फेटिक फ्लो efferent के थ्रू होता है. ठीक है, so C is the correct answer. Hess's corpus of the thymus gland are made Type up of 6 epithelial reticulum. ठीक है, ये तो याद रहेगा. रेड पल्प ऑफ द स्प्लीन कंसिस्ट ऑफ. अब इसमें से क्या है? कंसिस्ट ऑफ जब आपने कह दिया तो सी. Splenic cord. रेड पल्प, splenic cord. Periarterial sheath.
नहीं बेटे, पेरियार्टिरियल वाइट पल्प बनाती है। सेंट्रल आर्टीरियोल एंड पेरियार्टिरियल दे आर वाइट पल्प। स्प्लेनिक कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉस जो हैं ये सी होगा, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें यह है कि रेटिकुलर फाइबर्स भी उसमें हैं तो सही रेड पल्प में, लेकिन प्रीडोमिनेंटली इट इज स्प्लेनिक कॉर्ड ऑफ बिलरॉस। रेटिकुलर फाइबर्स उतने ही हैं जितने किसी भी और जगह पे। The marginal zone of periarteriolar lymphatic sheath of spleen consists of T lymphocytes, Antigen presenting. antigen presenting cells। यहाँ पे antigen presenting cells आते हैं marginal zone। ये मैंने आपको पढ़ाते हुए मेरा ख्याल है चीज नहीं जिक्र की। अच्छा जी, a 20-year-old boy presented in medicine department with complaint of weight loss, generalized lymph node swelling, splenomegaly, fever of unknown origin, malaise and rash on bite from last 3 months. Examination and workup done and diagnosed with acute lymphocytic leukemia। अच्छा, अब इसमें जो है ये बाकी सारी कहानी इज जस्ट डिस्ट्रैक्शन। अगर इसको सिंपली लिख देते हैं, पेशेंट ऑफ एक्यूट lymphocytic leukemia, in a patient of acute lymphocytic leukemia, how will you differentiation needs to be done from the normal lymph node, what the cell present in the normal lymph node would be, बस इतने की जरूरत है। तो C. मेरे ख्याल में तो T मैम बी lymphocyte लिम्फोसाइट्स नहीं होने चाहिए थे। असूलन तो इसमें बी लिम्फोसाइट डालना चाहिए था, लेकिन इस वक्त T lymphocyte आंसर बन रहा है। कॉर्टेक्स नहीं लिखा हुआ ना, नॉर्मल लिम्फ नोड लिखा हुआ है, और लिम्फ नोड की पैरा कॉर्टेक्स में हाई इसमें हाँ कॉर्टेक्स लिखा होना चाहिए। मैम है, कॉर्टेक्स है क्वेश्चन में। कहाँ पे है? अच्छा वो सॉरी, मेरे पास वो डिस्प्ले में नहीं आ रहा। तो अगर कॉर्टेक्स है तो फिर बेसोफिल का ठीक है। अच्छा ये भी वही है। High endothelial venules are characteristic feature of, ये तो अब तो आपको याद हो गया होगा बेटे। हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स, इस पर तो मैंने इतनी कहानी सुनाई है लंबी, कहाँ थे ये? B is the right answer। हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स पैराकॉर्टेक्स ऑफ लिम्फ नोड में थे, जिसके थ्रू टी लिम्फोसाइट्स आते हैं। पैराकॉर्टेक्स के अंदर इम्यूनोकॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट्स आते हैं, वहां पे लिम्फ नोड के अंदर लिम्फ में से पकड़ने के लिए एंटीजन। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे अभी ख्याल आ रहा है आपको बताना था, आपका टाइम ऊपर हो गया, वो ये बात कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जैसे आप कहते हैं ना कि किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर जब दाखिल होते हैं तो बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, और एजुकेट कितने होके निकले। तो थाइमस का जो रिजल्ट परसेंटेज है ना, वो तो बहुत ही बुरा है। उसमें से 95% सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उनका एपोप्टोसिस हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल एजुकेशन, एंड ओनली 5% ऑफ टी lymphocytes बिकम इम्यूनोकॉम्पिटेंट फाइनली, और वो ही 5% फिर सर्कुलेट करते हैं और हर जगह काम करते हैं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग, लेकिन इट्स अ रियलिटी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि थाइमस जो इतनी एजुकेशन कर रहा है
उसमें होता ये है कि जब वो एक तरह से वो जो डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स जब डेवलप होते हैं और फिर फाइनली जो है एक टाइप की कॉलोनी बनते हुए काफी सारे बीच में से खत्म हो जाते हैं। अच्छा जी, द नर्व सेल्स ऑफ द थाइमस आर, ये मैंने कौन से बताए थे उस वक्त का याद है? मैं अब टाइम क्योंकि ज्यादा हो गया, इट्स द आंसर इज ए। Type 2. Type 2 मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। थाइमोसाइट्स जो हैं, जो थाइमस की कॉर्टेक्स के अंदर स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं, towards the periphery of the cortex, small lymphocytes of the thymus, they are called thymocytes. का नाम थाइमोसाइट्स भी होता है। One of the function of epithelioreticular cells is, इसका भी आंसर है ए। epithelioreticular cells का अगर आप डिटेल्स पढ़ते हैं तो दे प्रोड्यूस हार्मोन्स आल्सो। बड़ी सरप्राइजिंग बात है, हार्मोन्स इसके हैं थाइमोलिन, थाइमोसिन, थाइमोपोर्टिक हार्मोन, और एक कोई पता नहीं रिलीजिंग फैक्टर भी है, तो हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। Okay, thank you very much. I hope this today's discussion was fruitful for you. Okay, we'll meet again inshallah maybe next week, or the exact date nahi yaad, and I will be discussing cranial nerves with you. Thank you very much. मैम so एक much, ma'am. क्वेश्चन था कि एंटीजन फिल्टरिंग साइट स्क्रीन में व्हाइट पल्प होगी कि रेड पल्प होगा? Antigen filtering site white pulp. ओके मैम, थैंक यू। Okay. Thank you very much. Thank you, Dr. Rafia. I hope you were satisfied with the arrangement and the connectivity. जी जी, ये Problem तो नहीं हुआ. absolutely fine. Thanks to the Okay. Lahore Thank you. Regional Center also. Thank you all. Thank you. All Thank the you best. very much. All the Thank you best. very All much. the best. Okay. Good afternoon. Nafis, ma'am. Allah Hafiz, Allah Hafiz. Allah Hafiz.